اس طریقے سے ملنگان حضرات جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا سجدہ کرنا حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اس کے تعلق سے بتائیے کیوں جھکتے ہیں آپ لوگ ایک مزار کے سامنے، درگاہ کے سامنے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ میں کچھ ملنگان ہیں، ان سے اسلامک اور دینی اور سلسلہ عالیہ مداریہ کے تعلق سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سے سلسلہ عالیہ مداریہ کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی۔ آپ یہ بتائیے، جو آپ یہ سر کے اوپر پگڑی باندھے ہیں، اتنے بڑے بڑے بال شریعت کے خلاف کیوں رکھتے ہیں؟ ایسا ہے، یہ شریعت سے خلاف نہیں ہے۔ یہ حضرت پہلے تو اگر شریعت کے حساب سے اگر پوچھا جائے یا کسی ثبوت کے حساب سے حدیث پاک سے، تو صفا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت میں ہے نا آپ، جی، تو انہوں نے تو رکھے نہیں، آپ کیوں رکھ رہے اتنے لمبے بال؟ اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرکار جنگ لڑنے کے لیے گئے، اور آپ کے ساتھ میں ایک صحابی رسول حضرت معذورہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آپ کے سر میں چوٹ لگ گئی، تو آپ نے سرکار مدینہ احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خاک اٹھائی مٹھی بھر زمین سے، اور ان کے سر پر مشق کر دی، تو ان کا خون کا رسنا بند ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں وہاں سے سرکار کا جنگ کے بعد میں چلے گئے سرکار میرے آقا، تو آپ کے جو ہے سر کے بال بہت بڑے لمبے ہو گئے، یعنی تو جب سرکار کے بال بڑے ہو گئے حضرت معذورہ رضی اللہ عنہ کے، یعنی گیسو دراز کافی لمبے گیسو اور بال، اور جب بڑے ہو گئے تو آپ کے جو ہے شریعت سے خلاف کمر سے اتر گئے۔ حضرت معذورہ رضی اللہ عنہ کی کمر سے نیچے بال آ گئے، جب کھڑے ہوتے تو آپ زمین میں لتھڑنے لگے، جب زمین میں چھلنے لگے تو آپ نے اور بھی صحابیوں نے عرض کیا، اے معذورہ، یہ آپ کے شریعت سے خلاف یہ بال ہیں؟ تو کہا آپ نے میرے آقا کا سر پر میرے ہاتھ مشق ہوا، یعنی جب ہاتھ مشق ہوا میرے سر پر، تو اس کے لیے مجھے سر کے بال کٹانا ناجائز۔ اگر ہم نے سر کے بال کو کاٹا تو سرکار مدینہ احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بے حرمتی کی، اس لیے اس غرض سے ہم نے جو ہے سر کے بال کو نہیں کاٹا۔ کہا اچھا، کہا سرکار کے پاس یہ بات گئی، سرکار نے کہا، اے معذورہ، یہ سر کے بال آپ کے اتنے بڑے بڑے بال ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، میرے آقا کا سر پر ہاتھ مشق ہوا، مجھے اس کے لیے شریعت سے، یعنی اس لیے ہم کو سر کے بال کٹانا ناجائز ہے۔ اگر میں نے سر کے بال کو کاٹا تو ہم نے میرے آقا مولا کا سر کے ہاتھ کی بے حرمتی کی۔ تو یہ جو ہے سوال جو آپ نے کیا ہے، یہ جو ہے حدیث پاک جو ہے صفا شریف ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نقل کیا ہے، اس میں سے آپ لوگ اس میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو جی یہ تو معاملہ یہاں سے ہو گیا، حدیث پاک کا معاملہ، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور جو ہے یہ صحابیوں کی سنت ہو گئی ایک۔ لیکن اب دوسرا یہ کہا جائے، اور جی یہ دوسرا جو ہے یعنی جواب دیجئے، کوئی ثبوت دیجئے دوسری سے، تو حضرت سرکار جمال الدین عرف جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سرکار مدینہ سرکار سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے دعا سے آپ پیدا ہوئے۔ جب جو ہے سرکار بی بی نصیبہ آپ کے پاس گئیں، کہا میں سرکار سے بولوں گا، میرا بچہ انتقال کر گیا اور بڑی خوشی سے میں آ جاؤں گا، بچے کی شادی کروں گا۔ تو آپ جاتی ہیں سرکار کے پاس، کہا دادا حضور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب دیا سرکار مدار پاک نے۔ تو آپ نے کہا بیٹی وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا سرکار وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا جیسا کہا آپ نے، کوئی بات نہیں۔ آپ خوشی خوشی کہہ کے کر چلی آتی ہیں اپنے گھر پر، جو ہے دیکھا تو آپ کے مکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ خیر کرے، کیا بات ہے؟ معلومات کیا، تحقیقات کیا لوگوں سے، یہ کیا بات ہے، ہمارے مکان پر بھیڑ کیوں لگی؟ کس جمال الدین چھت سے جو ہے گر کے نیچے گر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ خیر کرے، آپ گئے اور آپ نے جو ہے آپ کے اٹھایا اور سرکار کے پاس، سرکار سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا حضور میں نے جھوٹ بولا آپ سے، اور یہ بچہ ایسا سا تھا، زندہ تھا، یہ چھت سے گر کے مر گیا۔ کہا اچھا، کہا اللہ بیٹی مجھے یہ بچہ دے دو۔ آپ نے جو ہے بچے کو لیا، سرکار سیدنا بدی الدین
अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कहा बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ मौले के मौला जमाल की जो जन्नत में रूह है दोबारा कल्ब के अंदर डाल दे। अल्लाह तबारक तआला ने आपकी दुआ को कबूल की। सरकार जमालुद्दीन जो थे जिंदा हो गए तो उनका नाम पहले जमालुद्दीन था। जब आप जिंदा हो गए दोबारा रूह डाली गई तो आपका जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह नाम रखा गया। तो एक तो उनके सर पर हाथ रख दिया मदार पाक ने, तो कहा ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया तो मुझे सर के बाल कटाना नाजायज़ है। तो अगर मैंने सर के बाल को काटा अपने मुर्शिद के हाथ की बेहुरमती का। अब ये कहा जाए तीसरा मुझे कोई जवाब दीजिए किसी से, किसी दूसरे सिलसिले से, तो आ जाइए हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद व खलीफा हज़रत जो है बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह हैं। बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद व खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हैं और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा हज़रत गैसू दराज बंदा नमाज गुलबर्गा शरीफ में आपका मज़ार है। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने भी उनका अपना हाथ हज़रत गैसू दराज बंदा नमाज के सर पर रख दिया। तो आपने कहा मुझे मेरे सर पर ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया तो मुझे सर के बाल कटाना नाजायज़। तो ये 3-4 जगह से आपको सबूत दे दिया। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आपने। मलंगों का मामला जो है यहाँ से शुरू हुआ है और मलंग जो होते हैं मलंग की मानी एक मस्त के है और मस्त की मानी बेखुद के, यानी मस्त की मानी एक बेखुद अल्लाह की याद इलाही में मुब्तला रहना हर वक्त है। और वो शादी नहीं करते हैं अल्लाह के जो है। अब एक हदीस पाक यहाँ पर आती है कि मलंगों ने जो है साहब ये सुन्नत को छोड़ दिया, शादी नहीं करी। तो बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, मुझे कह लेने दीजिए। तो बात यहाँ पर आती है अब शादी नहीं की। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया जो सख्त शादी नहीं करते वो हम में से नहीं है। लेकिन दूसरी हदीस पाक जो है यहाँ पर इरशाद उसमें आप नकल करते हैं सहाबी हजरात सहाबी इकराम जो है, यानी अगर जो शादी नहीं करते हैं तो अपने आप की नफ्स को खस्सी करने रोजे रखें और अल्लाह की याद इलाही में यानी मुब्तला रहें और रोजे रखें। नफ्स मर जाएगा तो उसके लिए वो सुन्नत से खिलाफ नहीं है वो मलंगाने हजरात। तो ये मलंगाने हजरात रोजे भी रखते हैं और तकबा परहेजगारी भी करते हैं, अल्लाह की याद इलाही में मुब्तला रहते हैं हर वक्त। माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि मलंगों के ताल्लुक़ से ये आवाम में ये ज़्यादातर फैला है कि मलंगान हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उसके ताल्लुक़ से बताइए। देखिए मलंग जो है नमाज पढ़ते हैं और नमाज जो है फ़र्ज है। नमाज जो है किसी की माफ़ नहीं है, अपने वक्त का कितना भी बड़ा बली क्यों नहीं हो, अगर शरीयत से ख़िलाफ़ है वो नमाज नहीं पढ़ता, वो ना कोई विलायत उसको मिल सकती है ना कोई मलंगियत उसको मिल सकती है। मलंग नमाज का पाबंद रहता है, अगर पाबंद नहीं रहेगा तो फिर शरीयत को छोड़ जाएगा, तरीक़त पे कैसे पहुँचेगा, और जब तरीक़त पर नहीं पहुँचेगा तो हकीकत पे कैसे पहुँचेगा, मार्फत पे कैसे पहुँचेगा, जब मार्फत पर नहीं पहुँचा तो हकीकत पे कैसे पहुँचेगा। तो शरीयत की पाबंदी हर मलंगाने हजरात करते हैं और हमेशा से करते रहे और दीन की खिदमत की मलंगों ने। आज हिंदुस्तान की सरजमी पर जो है कहीं गद्दी है, कहीं चिल्ले हैं मदार पाक के, 1442 चिल्ले हैं मदार पाक के, 3,75,000 गद्दियाँ मलंगों की और तकिए बेशुमार हैं उनकी जो है, तकियों से ज़मीन लगी हुई हैं, चिल्लों से ज़मीनें लगी हैं, उसी से उनका खर्चा चलता था। जिमीदार लोगों ने लगाई थी, राजा महाराजाओं ने लगाई थी। तो जो है ये गलत कहते, अल्लाह का शुक्र है आज जो है मलंगाने हजरात और आज भी और पहले भी बड़े बड़े मुफ्ती रहे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो है सैयदजादे हैं, सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे सरकार दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन हम भी हैं। ऐसा नहीं है कोई ये ना समझे मलंग जो है जाहिल होते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। माशाल्लाह। अच्छा बाबा ये बताइए कि मलंगान के हजरात के ताल्लुक़ से भी अवाम में फैला हुआ है कि मलंगान जो है नशा करते हैं, जैसे चिलम वगैरह जो है यूज़ करते हैं,
तरह तरह के नशे करते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। देखिए मलंगाने हजरात जो है, अल्लाह का शुक्र है हम मलंग हैं, और जो है हम तो बीड़ी भी नहीं पीते, ना बीड़ी पीते, हम तो चाय भी नहीं पीते, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत फहमी है लोगों का जो है। अब आज ये बताइए, मलंगान हजरात अगर बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कोई बेचारे मलंग, लेकिन चिलम, गांजा, चरस ये शरीयत से खिलाफ है, ये कुछ नशे नहीं करते हैं। और जो है आज जो है मौलवी लोग हमारे पुड़िया खाते हैं, तो पुड़िया में क्या नशा नहीं है? क्या नशा है पुड़िया के अंदर? वो जायज़ है, यानी बीड़ी सिगरेट जो है ये हराम का करार दे रहे, ममनुआ तहरीमा है। इसी तरह जो है वो भी ये तहरीमा ममनुआ जो है पुड़िया, तो पुड़िया में तो ज़्यादा नशा है। और नशे की अगर ये कहा जाए सारे नशे हराम है, तो सबसे ज़्यादा नशा जो है दानियाल में होता है, खाने में होता है, तो फिर जो है वो भी छोड़ दो। जो है एक नशा जो है इबादत का भी होता है, अल्लाह के महबूब से इश्क करने में भी वो भी नशा होता है। लेकिन नहीं, मलंगाने हजरत अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मलंग कोई भी नशा नहीं करते, चिलम और जो है गांजा चिलम नहीं पीते हैं ये मलंगाने, अल्हम्दुलिल्लाह अलम वाले हैं, हज़रत अब्बास का अलम लेकर चलते हैं, ये चिलम वाले नहीं है ये मलंग। बाबा जी ये बताइए कि सरकार सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये उर्स की तारीख़ है, ये कितने दिन उर्स चलेगा और इसमें मलंगान हजरात क्या करते हैं, इसके ताल्लुक़ से भी बताइए। देखिए ये उर्स सरकार सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, और ये जो है अंग्रेज़ी जो है तारीख़ 7, 8, 9 तारीख़ है, और नवंबर का महीना ये इसी महीने में अंग्रेज़ी तारीख़, और जो है चांद की 15, 16, 17। तो यहाँ पर मलंगाने हजरात का जो है सगल होता है, और अपने शेख के सामने मस्ती में आते हैं और बज़्म करते और पढ़ते या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, यानी या हय्यूम पर उनका पहला कदम चलता है, या कय्यूम पर जो है दूसरा कदम चलता है। ये सगल करते हैं मलंगाने हजरात जो है, और जो है अपने शेख के आगे सरकार मदार पाक के दरबार में। और मलंगान हजरात जो है अपने शेख के सामने उछलते क्यों हैं, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए ये माल क्यों करते हैं? मलंगाने हजरात जो है अपने जो है शेख के सामने इश्क का जाहिर करते हैं, और जो है आशिकी में जो है अपने मुर्शिद के सामने जो है सगल करते हैं बाल खोलकर। अब ये कहा जाए, हदीस से सबूत दिया जाए, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपका ज़माना था, तो एक जो है एक शिकारी ने जो है एक हिरन को जो है पकड़ लिया था जो है, तो जो है पकड़ने के बाद में उस शिकारी से कहा मुझे मोहलत दे दो, और जो है अपने बच्चों को दूध पिला के लाऊं, मैं पिला लाऊं, जो है अपने चला जाऊं मैं, तो अभी हाल में आता हूं। हिरन ने ये कहा, तो आपने कहा कोई जो है जमानत किसी की दिलाई जाए, तो अल्लाह के महबूब ने जमानत दी उस हिरन की, तो वो जाती है अपने बच्चों को दूध पिलाती, हिरन जो है जब जो है बच्चों को दूध पिलाती है, फिर जो है और उधर से बच्चों को लेके साथ में आती है, कहा जो अल्लाह के महबूब ने जमानत दी है, तो बच्चे कहने लगे यानी है माँ मैं भी जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूँगा, चलो मैं भी चल ले आऊँ। तो वो बच्चे आए सरकार के पास में, वो बच्चे सगल धमाल करने लगे और उछलने लगे, कूदने लगे। वो जो है सुन्नत आज भी सरकार उसी तरह सरकार की शक्ल में और वही इश्क में यहाँ शेख के सामने सगल धमाल करते हैं मलंगाने। माशाअल्लाह। अच्छा बाबा जी एक चीज़ और बताइए, दरगाह शरीफ में मलंगान हजरात जो है सरकार सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के सामने नमाज में जैसे सजदा किया जाता है अल्लाह के आगे, उस तरीके से मलंगान हजरात झुकते हैं, सजदा करते हैं, और सजदा सिर्फ़ खुदा को है, खुदा के अलावा किसी के आगे झुकना सजदा करना हराम है, ताज़ीमी सजदा भी हराम है। उसके ताल्लुक़ से बताइए क्यों झुकते हैं आप लोग एक मज़ार के सामने, दरगाह के सामने? देखिए हम जो है सजदा नहीं करते हैं, सजदे में सारे जिस्म के उज़ू लगते हैं, और जो है उसमें सुबहान रब्बे आला पढ़ा जाता है, और इसमें सुबहान रब्बे आला नहीं पढ़ते। हम जो है ज़मीन को अपने शेख के सामने ज़मीन को चूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो है ये चला आ रहा सगल जो है सरकार के ज़माने से मदार पाक के दौर से। नहीं तो झुकना भी जो है शरीयत ने हराम फरमाया ना, शायद
ताज़ीमन सजदा भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट ने आपको जो है खाली ताज़ीमन झुक गया तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इजाज़त दीजिए, एक जानवर आपको सजदा कर रहा है, आपके ताज़ीम कर रहा है, अगर हमें भी इजाज़त दीजिए तो हम भी आपके आगे सजदा करें, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो आप एक दरगाह के जो है एक अल्लाह के वली के सामने क्यों सजदा की तरह जो है सारे मलंगान लेटते हैं, सजदा करते हैं? ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इन्नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा, यानी ऐ ये फरिश्तों आदम को सजदा करो, लेकिन जो है वहाँ पर जो है इज़ाज़ील ने सजदा ना किया, कुछ फरिश्तों ने सजदा ना किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है तो हज़रत उस वक़्त फरिश्तों ने जो है इज़ाज़ील ने सजदा ना किया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन हम तो सजदा नहीं करते हैं। वहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला सजदे का हुक्म दे रहा, हम तो एक कदम बोसी करते हैं और कुछ नहीं करते इसके अलावा। मलंगाने हजरात, ये सजदा नहीं है, कोई भी ताज़ीमी सजदा नहीं है, कोई वैसा भी सजदा नहीं है, ये लोगों की नातिफाकी है, वो जो है गलत समझते हैं इस बात को। हाँ, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो मलंगान हज़रात सरकार के जो है रोज़े के सामने सब सजदा रेज थे, सजदे की हालत में थे, जैसे नमाज में सजदा किया जाता है, उसके ऊपर काफ़ी जो है कमेंट वगैरह जो है बरेलवी हजरात ने लोगों ने भी किए कि जो ये लोग जो मलंगान है सिलसिले के ये सजदा करते हैं कब्रों के आगे, और वैसे ताज़ीमन भी सजदा हराम है, किसी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा है ही नहीं, अगर ताज़ीमन करेंगे तो वो भी हराम है। तो इसके ताल्लुक से बताइए कि आप लोग जो है इतना कि सजदे की हालत की तरह क्यों झुकते हैं? वहाँ वैसे भी ताज़ीम कर सकते हैं ना खानकाह में जाकर। देखिए जो है इस बात से चूम भी सकते हैं, जी देखिए सलाम भी पढ़ सकते हैं, जो है मिशकात शरीफ उठाइए, वो कानून शरीयत उठाइए जो है, अब जो है यानी उस्ताद का और जो है यानी मुर्शिद का दर्जा बड़ा होता है, यानी पीर मुर्शिद का और उस्ताद का, जो उसके कदम चूमना जायज़ है, माँ बाप के कदम चूमना जायज़ है। आप मिशकात शरीफ भी पढ़ उठा सकते हो, और जो है तो हम तो जो है कदम नहीं चूम रहे, हम तो जो है उनकी चौखट को चूम रहे हैं, ये गलत है। हम सजदा नहीं करते हैं, ये हम फिर भी बार बार कह रहा हूँ, हम सजदा हम लोग नहीं करते मलंगान नहीं जाता। और अगर कोई ये कहे इसका सबूत भी चाहिए तो मैं जो है इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ। हम लोग कदम बोसी करते सिर्फ खाली बस, अगर ये माँ बाप का कदम बोसी करना भी नाजायज़ है, हराम है, तो वो मुझे सबूत दे दिया जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को जो है सरकार मौलाए कायनात ने चूमा है, और भी हजरत अबू जो है अबू ज़र इन्होंने कहा था, हजरत जुबैर ने भी चूमे है, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अब्बास ने चूमा है। तो अब बताए हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है आप वहाँ पर गए, आपके मकान पर आप नहीं मिले, लेकिन उस जगह को आप चूम के आए आपके मकान पर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा रुक जाइए, तो आपने कहा नहीं मेरी माँ नामीना है, हम नहीं रुक सकते, मुझे इतनी मोहलत नहीं है, सरकार मेरे आका हैं तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना कोई दीवाना आया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा जी अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम इसमें गिरामी। मेरा नाम सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अल मदारी अरगुनी मलंग। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे हमारे दादा परदादा इसी मकनपुर शरीफ के रहने वाले हैं। सरकार सैयदना दादा अरगुन रहमतुल्लाह अलैह की आले औलाद में हैं, लेकिन कुछ दिनों से पहले पुराने वक्त में जो है औरैया पहुंच गए थे, डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश। सैयद शाह जमाल बली रहमतुल्लाह अलैह जो हैं सरकार दादा अरगुन की औलादों में से हैं।